Hello, dear students. Welcome to my SKI. And now we are going to start our next poem, full explanation, the ball poem by John Berryman. Fifth poem है आपकी जो कि बहुत ज़्यादा beautiful है. And whole stanzas of comprehension, whole stanzas explanations, yes, at a glance, glossary words and paraphrases in Hindi or English too. So just by doing this, you can understand whole poem in a very simple and easier way. So let's start with our first stanza of the poem. Yes, you can see in your textbook. Otherwise, you can take an screenshot of this screen, and after that, you can understand that what poet want to say actually into the first stanza of the poem. So the poet is standing near the harbor when he sees that a young boy's ball is rolling away from him and it bounces happily on its way and finally falls into the water, and he asks the reader what the boy should do now, and that his ball is gone actually. पहले स्टैंजा में जो पोएट हैं वो बच्चे के पास खड़े होके उसकी सारी गतिविधियों को देख रहे हैं और हमसे यानी कि रीडर से, आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उसकी उस छोटी सी फीलिंग के बारे में कुछ बताएं जब एक बच्चे की बॉल पानी के अंदर उछलती और कूदती हुई जाग करके गिर जाती है। हालांकि वो बॉल इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं होगी, वो बॉल दोबारा भी उसको दे लेके दी जा सकती है, लेकिन पोइट ऐसा नहीं करना चाहते। नहीं, वो कोई क्रूअल नहीं है और ना ही ऐसा है कि उनको बच्चों से प्रेम नहीं होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि अभी इसी वक्त वो समझ ले कि अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी किस प्रकार निभाई जाती है और किस प्रकार से अपने बचपन के या पुराने खिलौनों को भी संभाल के रखा जाता है, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस प्रकार से निभाई जाती हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बच्चे के पास में खड़े हैं और ये देख रहे हैं कि बच्चा अपनी आंखों से देख पा रहा है कि उसकी बचपन का खिलौना जिसके साथ उसने बहुत गोल्डन टाइम स्पेंड किया था, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं उस बॉल के साथ में, वो बॉल अचानक से उछलती कूदती और हैप्पीली पानी में जाके गिर गई है। ब्यूटीफुल ग्लॉसरी वर्ड है इसमें। मैरीली मीन्स होता है हैप्पीली, बाउंसिंग लाइक जंपिंग एज वी नो वेरी वेल। And into the second stanza, yes, second stanza, yes, you can see on the screen that I have already marked all stanzas from your book, and there are 18 lines. Yes, there are 18 lines and 5 stanzas which I found from your textbook. Yes, you can take an screenshot, otherwise you can see in here in the screen that I have given to you. So in the second stanza, the poet thinks of consoling the boy by telling him that there will be other ball just like that. Yes, कोई इतनी भारी भरकम चीज नहीं है कि वो चीज उसको दोबारा ना मिल सकती हो या उसको कोई दिला के नहीं दे सकता हो। But like that one, and he had to get will no one sooner or later, but he knows that such false consolation will not make the boy feels any bitter, and he noticed that the boy is grief stricken, and his body is trembling. After all, he loses his childhood toy now, that's why he's trembling, shivering, with the fear that he lost his childhood toy. Okay, अब भी जब कोई बचपन का खिलौना खो जाता है आप लोगों का, या किसी की भी कोई चीज भी हो, कोई भी मेमोरी में हो, वो चीज अचानक से उससे दूर हो जाती है तो उसको ऐसे ही बुरा लगता है, अंदर बहुत सारे भाव उठते हैं कि वो चीज उससे दूर जा चुकी है। एंड ट्रम्बलिंग विद द pain of loss, yes, as he watches the ball go into the harbor and down into the water, and he feels as if his childhood has also slipped away from him. Yes, beautiful glossary word यहाँ पे है ultimate. Ultimate means like final. As you can see into your second stanza, these all beautiful glossary words are shown with the and ultimate like final. Grief means hota hai sorrow, and rigid means high hard, and trembling like shaking, and harbor एक है port जिसके बारे में आप अभी इस सेकंड स्टैंजा में जान रहे हो। पोइट कहना चाहते हैं सेकंड स्टैंजा में, हाँ हो सकता है कि वो उसको जा करके दूसरी बॉल दे दे, पर ऐसा करने से बच्चे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बखूबी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि एक चीज खोती है तो मुझे मिल ही जाती है। लेकिन इसीलिए पोइट ये चाहते हैं कि अभी उसको वो कोई दूसरी बॉल नहीं ला के देंगे, ओके, और वो उसको इसी टाइम
इसी टाइम इस चीज़ का रियलाइजेशन करवाएंगे कि भाई अपनी चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए. And yes, into the third stanza, although torn between a dilemma, and the poet feels that it would be wrong to go up to the boy and intrude on his solitude, and giving him money to purchase another ball will not hold any value of him. For देखिए ऐसा होता है ना कि जब हमें कोई चीज़ दोबारा मिल जाती है खोने के बाद भी, तो हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती कि भाई चलो चली गई तो चली गई, भाई दूसरी आ जाएगी. तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि जो चीज़ हमसे दूर जा रही है शायद उससे हमारी कुछ यादें जुड़े. अदरवाइज यहाँ पे कुछ एक टॉय के अलावा आपका कुछ भी हो सकता है. आपका फर्स्ट लव हो सकता है, फर्स्ट आपकी ड्रेस हो सकती है, शूज जीन्स सॉक्स, मतलब आपके बहुत सारी मेमोरीज, आपका व्हीकल हो सकता है. और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी पहली चीज़ों से बहुत यादें जुड़ी हुई होती हैं. तो यहाँ पे पोइट से थर्ड स्टेंजा में ये हमें कहना चाहता है कि हो सकता है कि वो बॉल उसको ला के देते हैं. इट्स नॉट मोर एक्सपेंसिव फॉर हिम, और वो ला के दे सकते हैं सेम टू सेम बॉल एट अ टाइम. बट वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कि एक झूठी सांत्वना देनी होगी और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह भी अच्छे तरह से नहीं कर पाएगा. And the poet feels that the little boy is undergoing a transformation when he is coming to the realization of responsibility. And in this world of possessions, all things are temporary, and their loss is natural. एंड देखिए इस आधुनिक दुनिया के अंदर हर चीज़ टेम्परेरी है. तो वो चीज़ उसको सिखाना चाहते हैं कि अगर थोड़ी सी देर का कंसोलेशन उसको दे भी दें, भाई बॉल ला के दे दी, तुम्हारा टॉय टूटा ला के दे दिया, वो थोड़ी क्षणभंगुर होगा, एक लिटिल टाइम के लिए होगा कि वो उसको फिर से खुशी मिल जाएगी, फिर वो चीज़ खो जाएगी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो सीखेगा नहीं. लेकिन इस आधुनिक दौर में ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट हमारे पास नहीं होती. चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर. परिवर्तन जो है ना प्रकृति का नियम है. हर चीज़ चेंज होती है समय के साथ में. वो पोएट उसको उस बॉल के लॉस के साथ साथ ये चीज़ उसको सिखा देना चाहते हैं अपने थर्ड स्टैंजा के अंदर, जो कि मार्क्ड है आपके स्क्रीन के ऊपर. और आप ये नोटिस कर सकते हो कि ये लाइन नंबर 10 to 13 है. And in this line beautifully the poet beautifully describe the whole sentiments behind the ball and a boy. And yes, fourth stanza is on your screen and you can mark it ऑल्सो बिकॉज आपके पूरे पोएम के अंदर 18 लाइन्स सिक्वेंस में दी हुई हैं और यहाँ पे अलग अलग स्टैंजाज नहीं बने हुए हैं. ये स्टैंजाज आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों को आप बहुत जल्दी नोटिस कर लें, क्योंकि ये जो आपका फोर्थ स्टैंजा है ये आपका 13 to 16th line तक है. And in this stanza the poet says that the material things like a ball are temporary, okay, and things like money doesn't stay with the one forever, and they keep moving from the person to the others. And one particular things in your possessions today might be in some others ownership, and tomorrow there the ball is a symbol for all of one's in possessions. And the poet is saying that we will certainly lose them one day, and that they cannot be easily replaced. Yes, इस सबके फोर्थ स्टैंजा में पोएट ये दर्शाना चाहते हैं इस आधुनिक दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, और कोई भी चीज़ को हम अपने कलेजे से लगा करके ताउम्र तक नहीं रख सकते. कुछ चीज़ें जल्दी खो जाती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा रुक करके हमारे पास जाती हैं, लेकिन जाती हैं. ये आधुनिक दौर है और उस बच्चे को ये समझ जाना चाहिए इस बॉल के सहारे उसके सेंटिमेंट्स तो जुड़े हैं. हाँ, हो सकता है उसकी बहुत सारी भावनाएं जुड़े इस चीज़ बॉल से, बचपन की बहुत सारी यादें उसकी इस बॉल से जुड़ी होंगी, दोस्तों के साथ खेलना जुड़ा होगा, हो सकता है इस बॉल के चक्कर में मम्मी से कई बार पनिशमेंट भी मिली हो. ये सब छोटी छोटी चीज़ें अभी आज और इसी वक्त इस बॉल के दूर जाती है उसको समझ जानी चाहिए कि हमें अपनी चीज़ों का एक संभाल के रखना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये चीज़ में समझनी चाहिए कि कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी प्रियतम क्यों ना हो, वो चीज़ आने वाले समय में आपसे दूर हो जाती है, क्योंकि ये एक आधुनिक दौर है. हो सकता है रिप्लेसमेंट हो जाए, नई बॉल मिल जाए, नया टॉय मिल जाए, नया इंसान मिल जाए, या नई
कोई भी चीज़ हो वो आपको नहीं मिल जाए, लेकिन पुरानी चीज़ के साथ में जो आपकी याद जुड़ी हुई होती है, आपकी मेमोरी जुड़ी हुई होती है, वो चीज़ आप नई चीज़ के साथ में नहीं फील कर सकते। तो पोइट आपके फोर्थ स्टैंजा में बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्राइब कर रहे हैं विद इन ओनली 3 लाइन्स कि जो ये आधुनिक दौर है इसमें हर किसी व्यक्ति विशेष को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो वेरी लास्ट स्टैंजा है आपका स्टैंजा नंबर 5 and you can see on the screen. And in this beautiful stanza, the poet says that although there is too much sadness in the boy's eyes, yes, अफसोस तो बच्चे को होगा, बचपन की यादें जुड़ी हैं भाई खिलौने से, और होता भी है। बच्चों की बात नहीं है, ये बड़ों की बात है कि हम मेरी भी कोई चीज़ अपने पास रखी हुई बहुत पुराने समय से अचानक खो जाती है, टूट जाती है या दूर हो जाती है, तो उसका दुख तो भाई रहेगा, क्योंकि मेमोरी जुड़ी हुई होती है हमारी उस उस वस्तु से, उस चीज से या उस व्यक्ति विशेष से। सो उसकी आंखों में पोएट देख पा रहे हैं एक दर्द और दुख भरी भावना, बट he is learning an important lesson, and that is losses are part of life, and he is also learning। हाँ, अभी दुख हो रहा है तो भाई झेल ले थोड़ा बहुत दुख, आगे के समय के लिए तो मिच्योर हो जाएगा भाई, समझ जाएगा कि भाई ऐसे लॉसेस वगैरह जीवन में ना चलते रहते हैं। अभी तू छोटा है, अब बड़े होके तो पता नहीं तुझे क्या क्या चीज देखनी पड़ेंगी, इसलिए आज समझ ले कि ये भी होता है। पोएट आपके 5th स्टैंजा में ब्यूटीफुली यही चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट वी शुड नॉट बेंड और ब्रेक एज एट सच लॉसेस। हमें अपने आप को तोड़ना नहीं चाहिए, अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करना चाहिए जब हमसे कोई चीज़ दूर जाती है या अलग हो जाती है, टूट जाती है या आपसे छिन जाती है। रेदर वी शुड एक्सेप्ट देम एंड मूव ऑन। सो लाइफ तो चलने का नाम है। तो पोएट अपनी 5th स्टैंजा में यही चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आपसे समय के साथ साथ दूर हो जाती है, आपसे छिन हो जाती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि बहुत लंबे समय तक एक ही चीज़ को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। देखिए बच्चे की तो अभी शुरुआत ही है लाइफ की, बॉल खोई है, बॉल नहीं आ भी जाएगी, बड़े बड़े होने तक तो पता नहीं कितने एक्सपीरियंस आएंगे उस बच्चे के साथ में, कितने रिलेशंस आएंगे और नए कितने खिलौने आएंगे, कितने बदलाव उसके जीवन में आएंगे, नई ड्रेसेस आएंगी, सबके साथ मेमोरी जुड़ी होंगी। तो बच्चे के साथ में तो पोएट ने अभी ये चीज़ बताई है कि भाई सीख ले, अभी अभी तू बच्चा है और सीख ले कि ऐसा होता है, ये लाइफ टाइम होगा आगे, और बड़ी बड़ी चीज़ें भी तुझसे दूर जाएंगी। तो बचपन से तुझे समझना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि तू अपनी चीज़ों को संभाल के रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, उसको संजो के रखो ताकि वो चीज़ आपसे दूर न जा सके। अदर हैंड वो उसको सिखाना चाहते हैं कि भाई लाइफ का लेसन है भाई, कोई चीज़ परमानेंट तो नहीं रहने वाली है। बड़ों के साथ में थोड़ी डिफरेंट कंडीशन होती है, बड़ों के साथ में ऐसा होता है कि वो नई चीज़ ले भी आते हैं अगर, तो पुरानी चीज़ों की यादें तो उनसे दूर नहीं हो सकती ना। पॉइंट टू बी नोटेड फ्रॉम दिस पोएम जो मैंने खुद से नोटिस किया है, दैट नथिंग इज परमानेंट, एंड second, change is the law of the nature and be responsible for your duties। so इस इस पोएम से पोइट ने बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। इन तीनों लाइन में मैंने अपने आप से एक चीज़ पॉइंट आउट की है जो कि आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, किसी भी स्टैंजा के अपने किसी भी आंसर में ये लाइन आप मैजिक लाइंस में ऐड कर सकते हो। मैजिक लाइंस को लेकर के हम ऑलरेडी एक चैप्टर बना चुके हैं, एक लेक्चर बना चुके हैं। सो नथिंग इज़ परमानेंट एज यू, ये आपके लिए भी लेसन है भाई कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, और प्रकृति का नियम है कि वो चेंज होती है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारियों के प्रति, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति आपको अच्छे से निर्वाह करना चाहिए, उनके प्रति अच्छे से अपना टाइम देना चाहिए, उनसे टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझना चाहिए और अपनी ड्यूटीज़ को समझना चाहिए कि आपको जो ड्यूटी मिली है, अभी पढ़ने की ड्यूटी है, अभी पढ़ने की उम्र है तो केवल आपको पढ़ना है। हाँ, और भी काम करने हैं, खेलना कूदना भी है, टाइम भी स्पेंड करना है दोस्तों के साथ में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करते हुए आपको अच्छा जीवन जीना है। यही चीज़ इस पोइट में, इस पूरी पोइट्री में पोइट ने हमें समझाई है। और ये पॉइंट्स बहुत नोटिस करने हैं क्योंकि इनके ऊपर एक अच्छी डिबेट भी हो सकती है, जो कि लॉन्ग आंसर्स में आपके सीबीएसई और आईसीआईसी बोर्ड में इन टॉपिक्स को लेकर के आपके लॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं इस साल के लिए। सो
डियर चिल्ड्रंस कीप रीडिंग ऑलवेज, क्योंकि बुक्स पढ़ने के लिए जब आप बुक्स पढ़ते हैं, अपना टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, तो आपके दिमाग में ना कई सारे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स का एक हॉरिजॉन्ट बनता है, एक नई नई वर्ड्स का कलेक्शन होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने लॉन्ग आंसर्स में, शॉर्ट आंसर्स में। और ये तो पोइट्री है, पोइट्री में तो आप अपने आप से भी बना बना करके बहुत कुछ लिख सकते हो। So, dear children, this is the message of the poem that nothing is permanent, change is the law of the nature. Be responsible for your duties and यस द बॉल पोएम से हमें बहुत अच्छा मैसेज मिला है अपनी लाइफ टाइम के लिए। सो डियर चिल्ड्रंस कीप रीडिंग ऑलवेज, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ। एंड यस हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।